میں شادی سے پہلے ہی کافی بار اپنی مرضی سے کافی لڑکوں کے ساتھ رات گزار چکی تھی۔ میری ماں نے زبردستی میری شادی کر دی۔ شادی کی رات میں بے حد ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو سب معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ پھر جب شادی کی پہلی رات جب قریب آیا تو کہنے لگا، میں اپنے والدین کے ہاں شادی کے 3 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ خدا کی کرنی کہ میرے بعد ان کی ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، یوں میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ہی ان کی توجہ کا مرکز اور ان کی کل کائنات۔ میرے والد صاحب مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ جب میں 11 برس کی ہوئی تو ایک روز اچانک لوٹتے ہوئے سڑک کے ایک حادثے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرا اور والدہ کا برا حال تھا کیونکہ ہمارے ان کے علاوہ تھا ہی کون۔ میری والدہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مائکے چلی جاؤ۔ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے اور ماموں اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا میری والدہ مائکے بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھابھیوں کے سلوک سے پہلے ہی واقف تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب اپنی بیٹی کے سارے ہی اب زندگی جیوں گی۔ وہ کہتی نہ جانے ستیلا باپ کیسا ہو اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ستیلی رشتوں کی بھیٹ چڑھے۔ میرے تایا جان نے دادا کی جائیداد سے میرے والد کے حصے کا مکان ہمیں رہنے کو دے دیا اور میری والدہ سے کہا کہ ابھی آپ ہی کی ملکیت ہے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہنے لگی۔ میری والدہ کو سلائی آتی تھی، لہٰذا انہوں نے عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور یوں ہم ماں بیٹی کا گزر بسر ہونے لگا۔ تایا بھی ہماری کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے اور زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ ماں پہلے گھر کے کام کرتی اور پھر سلائی مشین رکھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی۔ اپنی مصروفیات کے باعث وہ مجھے کم ہی توجہ دے پاتی تھیں۔ میں نے میٹرک کر لیا تو آگے پڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر گھر بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس ہوتی۔ اسکول جاتی تھی تو سہیلیوں کے ساتھ دل بہل جاتا تھا۔ گھر میں نہ تو میرا کوئی بہن بھائی تھا کہ جس سے باتیں کر سکتی، امی ہر وقت بس مصروف رہتی۔ یوں میں سارا دن تنہائی محسوس کرتی۔ انہی دنوں ایک روز جب میں کسی کام سے چھت پر گئی تو ساتھ والے گھر کا لڑکا جسے میں بچپن سے جانتی تھی، جس کا نام سفیان تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، بالکل ایسا کہ میری عمر کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ مجھے اور بھلی لگی۔ ایک دو بار جب اس سے آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اب روز یوں ہونے لگا کہ جب مجھے موقع ملتا میں چھت پر چلی جاتی اور ہم دونوں منڈیرے سے باتیں کرتے۔ مجھے بھی جیسے بوریت دور کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ میری والدہ تو وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ مجھے آواز وغیرہ دیتی تو میں فوراً آ جاتی۔ 19 برس کی عمر میں الگ لڑکیاں جتنی خود سر ہوتی ہیں، میں بھی تھی جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ آج تک اپنی نادانی کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایک دو بار تو ماں نے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا اور پھر مجھے نیچے آ کر خوب باتیں بھی سنائی، مگر میرا دل تو اب جیسے ہی میرے بس میں نہ تھا۔ میں ان کی ڈانٹ کے بعد 2 دن سکون سے بیٹھتی اور تیسرے روز پھر چھت پر سفیان سے ملنے کو چل پڑتی۔ اماں نے کہا، زینب باز آ جا، تو ایک بیوہ کی بیٹی ہے، بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے جبکہ بات رکھنے والے ایک بھی نہ ہوگا۔ مگر میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور بدستور محبت کے پینگے بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی اور یہ سہانے خواب مجھے ہمارے پڑوسی سفیان نے ہی دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو موم کر لیا کہ میں اسی کے ساتھ عمر بھر نبھانے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا بھرپور انداز میں اظہار کیا اور شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ماں تو کیا، اب تو ساری دنیا بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ سفیان بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی باتوں کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا تھا۔ ویسے جذبات ہے کہ ان دنوں کوئی میری جان بھی لے لیتا تو میں یہ چاہتی، یہ اچھا ہو گیا، اب میں اتنی بے وقوف ہو گئی تھی کہ راتوں کو بھی اس سے ملنے جانے لگی۔ ہم ایک وقت مقرر کر لیتے، ہماری اور ان کی ایک ہی چھت تھی، بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔
मेरी माँ सारा दिन काम की मसरूफियात के बाइस सो जाती। उसे तो क्या, किसी को भी कानो कान खबर ना होती। बस चांदनी रात और अंधेरे हमारे रास्ता थे। ये दोनों ही हमारे होते थे। चांद रुकावट बनता और ना अंधेरा, और हमारे मकानों की जुड़ी हुई छतें हमारी मुलाकातों का संगम थी। माँ का मामूल था कि वो सुबह बेदार हो जाती, तहज्जुद के बाद नमाज फजर और फिर तिलावत के फ़राइज़ अदा करती। दिन भर घर का काम करके फारिग वक्त में सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई करना, यूं पेट भरने की चक्की ये मशक्कत उनको शाम तक न ढाल कर डालती। शाम होते ही नींद से आंखें बंद होने लगती, चारपाई पर लेटते ही सो जाती। तब मैं दबे पांव छत पर चली जाती, जहां सुफियान मेरा पहले से मुंतजिर होता। मुझे देखते ही वह हमारी छतों के दरमियान में मौजूदा नन्ही सी मंडेर पार करके मेरी तरफ आ जाता। हर रात मुलाकात के दौरान वो मुझसे शादी के कई वादे करता। एक रात शादी के मुतालिक सुहाने ख्वाब बनते और बातों बातों में हमने सारी हदें पार कर दी। मैं उसको ही क्यों कसूरवार समझूं? मैं खुद भी तो बहक गई थी। मैंने भी तो खुद को उसके हवाले कर दिया था। जब मुझे होश आया, माँ का ख्याल आया तो रोने लगी। उसने मुझे चुप करवाया और तसल्लियाँ दी कि वो बहुत जल्द अपने वालिदैन को मेरी वालदा के पास भेजकर मेरा रिश्ता तलब करेगा और यूं मुझसे शादी कर लेगा। यूं एक मुद्दत तक आग और कपास का ये खेल जारी रहा और हमने कुर्ब के तमाम मराहिल तय कर लिए। मैं उसकी मोहब्बत में सरशार थी और वो मेरी तलब में मदहोश। हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हमारा निकाह जल्दी से हो जाए, ताकि हम इस खतरनाक सफ़र से निजात हासिल करके अपनी मंजिल को पहुंच जाए। मैं अब उससे इसरार करती कि अपने वालिदैन को मेरी वालदा के पास भेजो और मुझसे शादी कर लो। वो मुझे कहता, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज दूंगा। वक्त गुजरता रहा और फिर रफ्ता रफ्ता मेरा मुतालबा बढ़ने लगा। जब मिलती उससे कहती कि रोज इस दरिया से गुजरना अब बस की बात नहीं रही। सुफियान, अब हौसला हारने लगी हूँ मैं। तुम अब मेरी माँ से बात करो, आखिर कब तक तुम मुझसे शादी करोगे? वो आगे से कहता, जब तुम कहोगी कर लूंगा। इतनी बार उसने यही जवाब दिया तो मुझे उसकी ये बात मजाक लगने लगी। मैं तो रोज़ अव्वल से उसको कहती थी कि मुझसे शादी कर लो, वही सही तरह से जवाब नहीं देता था। हर बार कहता, जरा सब्र कर लो, कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अब उससे आगे से कहती, आखिर क्यों सुफियान, इतना वक्त तो गुजर गया है, अब क्या मसला है? ऐसी कौन सी मुश्किल है? आखिर क्या कबाहत है? मैं इसरार करती जाती। देखो सुफियान, एक मेरी बेवा माँ ही तो है, उसको बनाना कौन सा मुश्किल काम है? वो तो दिल से चाहती है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, ताकि वो सुख का सांस ले और बेटी के फर्ज से सुरखरू हो सके। और वो तुम्हें भी बचपन से जानती है, तुम्हारी अम्मी से भी उनकी बहुत अच्छी बनती है। वो तुमसे प्यार भी करती है। तुम उनसे एक बार रिश्ते के लिए कहोगे तो वो 100 बार हाँ कहेगी। एक बार मेरा हाथ मांग कर तो देखो, माँ निहाल ना हो जाए तो कहना। वो आगे से कहता, तुम्हारी माँ की तरफ से तो मैं मुतमईन हो गई हूँ, मगर डर मुझे अपने घर वालों की तरफ से है। वो नहीं मानेंगे। उन्हीं को मनाने के लिए मुझे भी मोहलत चाहिए। मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात कर चुका हूँ। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे अब्बू को मनवा लूंगी, मगर अभी तुम्हें कुछ दिन सब्र से काम लेना होगा। मगर तुम सब्र करो तो तब ना। ऐसा कहते हुए सुफियान का लहजा इस कदर यकीन भरा होता कि मैं भी यकीन कर लेती। दिल में सोचती, हुए इस मोड़ पर मुझे धोखा नहीं देगा कि जब मैं उसके बगैर इन पतवार की कश्तियां मानद हो चुकी होती हैं, जबकि मैं उसके बगैर इन पतवार की कश्तियां मानद हो चुकी हूँ। जब मेरी अम्मी मुझसे मेरी शादी के मुतालिक बात करती या किसी रिश्ते का तस्करा करती तो मैं उन्हें फौरन जवाब देती कि मैं सिर्फ सुफियान से शादी करूंगी। अम्मी आगे से मुझे कहती, तो फिर उससे कहो ना कि वो तुम्हारा रिश्ता भेजे। मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ। अगर सुफियान भी राजी है तो तुम्हारी इधर ही कर दूंगी, मगर वो रिश्ता तो भेजे। मैं आगे से ही उन्हें कहती कि वो बहुत जल्द मेरा रिश्ता भेज देगा, इसलिए आप मेरा इधर उधर कहीं भी रिश्ता देखने की कोशिश नहीं करें। मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। जब उन्होंने देखा कि सुफियान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा और मैं फजूल में उससे आस लगाए बैठी हूँ, तो उन्होंने मेरे ताया को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी भतीजी बड़ी हो गई है, कब तक इसको घर बिठाए रखोगे?
तुम ही कोई रिश्ता तलाश कर दो ताकि इसके फर्ज से फारिग हो सकूं। चंद दिनों बाद ही ताया अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। अम्मी ने ये रिश्ता गनीमत जाना, बुरे वक्तों में अपनों ने गले लगाया, इससे बढ़कर और क्या खुश नसीबी होगी। माँ ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और बाद में जब मुझे बताया कि तेरा रिश्ता मैंने फारूक से तय कर दिया है, माँ के मुँह से मैंने फारूक का नाम सुना तो दिल बैठ गया। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी मैं फारूक से हरगिज शादी नहीं करूँगी। अम्मी आगे से कहने लगी, अरे क्यों नहीं करेगी, क्या बुराई है उसमें। मैंने कहा कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करूंगी। मैं सुफियान से शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में बस वही बसेरा कर चुका है। अम्मी आगे से गुस्से से कहने लगी, लेकिन वो नहीं करेगा तुझसे शादी। मैं तेरे ताया को हाँ कर चुकी हूँ। मैंने कहा, लेकिन अम्मी मुझसे पूछे बगैर आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपने ताया के बेटे से मेरी शादी करवाने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगी, याद रखिएगा। मैंने आसमान सर पर उठा लिया। माँ से खूब लड़ी, मर जाने की धमकियाँ दी। पहले तो वो मुझे प्यार से समझाती रही। जब देखा कि मैं हठ धर्मी पर मजबूती से कदम जमाए हुए हूँ तो वो बिना मुझसे कुछ कहे सुफियान के घर चलती। मैंने रो रो कर आंखें सुर्ख कर ली थी। जब वो वापस आई तो कहने लगी, आज शाम को सुफियान आएगा, मैं आज तुम्हारे सामने ही उसके साथ सारी बातें कर देती हूँ। तुम्हारा ताया एक माह बाद शादी की तारीख रखने आएंगे। अगर सुफियान ने उनके आने से 15 दिन के अंदर अंदर तुझसे निकाह नहीं किया तो फिर मैं तेरे ताया को तेरी शादी के लिए तारीख दे दूंगी। फिर तुझे फारूक से शादी करना ही होगी। खैर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। सुफियान से जाकर साफ बात की थी तो वो अरसे से मुंह में कुंडलियां डाले बैठा था। मुझे तो वो टाल मटोल किए जा रहा था। अब माँ दरमियान में थी और ये मौका मेरे लिए गनीमत था कि मैं खुद इस दिन की मुंतजिर थी। मैं शाम होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बिलाखिर शाम को सुफियान हमारे घर आ गया। मैं दूसरे कमरे में चली गई। मेरी माँ को सलाम करने के बाद उसने कहा कि खाला जी आपने मुझे बुलाया था। अम्मी कह रही थी कि तुम्हारी खाला ने शाम को तुम्हें अपने घर आने को कहा है। मैं आते ही मुंह हाथ धो के आ गया, क्या कोई काम था? अम्मी ने उससे बातें शुरू की। मेरे कान दरवाजे पर ही लगे थे। वालदा नेक नियति से सारी बात करने लगी और उसको बता रही थी और वह हमतन गोश था। आखिर कोई तवक्कुफ के बाद अम्मी ने ही खामोशी को तोड़ा। सुफियान बता, अब तेरी क्या मर्जी है? हर बात साफ साफ बता दे, धोखे में ना रखना। मैं बेटी की खुशी चाहती हूँ, तेरी रजा चाहने के बाद ही फैसला करूंगी। वो काफी देर खामोश बैठा रहा, फिर कहने लगा, खाला जी मैं तो दिल से चाहता हूँ कि आपकी बेटी से शादी करूँ, मगर मेरे घर वाले नहीं मानते। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है मगर वो नहीं मानते। वो मेरी शादी में शरीक नहीं होंगे अगर मैंने आपकी बेटी से शादी की। अम्मी आगे से कहने लगी, कोई बात नहीं बेटे, तुम 2-4 दोस्तों को साथ ले आओ और इन्हीं 15 दिनों में से किसी दिन मेरे घर आकर जैनब से निकाह कर लो तो भी मैं राजी हूँ। मुझे अच्छे से एहसास है तुम्हारी मजबूरी का, लिहाजा इस तरह भी तुम्हारी और जैनब की शादी पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उम्मीद थी कि वो माँ की बात सुनकर खुशी से खिल उठेगा और फौरन शादी पर राज़ी हो जाएगा, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने उसे बुझा हुआ पाया। वह फिर से टाल मटोल करने लगा। बात करने का अंदाज ऐसा था कि सिर्फ इनकार भी ना था मगर मजबूरी इस कदर बयान कर दी कि मतलब इनकार भी जाता था। मेरे आंसू आए। मैंने दरवाजे की चौखट को मजबूती से ना थामा होता तो शायद गिर पड़ती। सोच भी ना सकती थी कि वो इस तरह मेरी माँ को दिल शुकन जवाब देगा। कुछ देर बाद वो कहने लगा, खाला जी आपको शायद बहुत चलती है, जैनब की शादी आपको इख्तियार है, आप अपनी बेटी की शादी कर दें। मैं तो जब अपनी मजबूरी से निकलूंगा तब ही शादी के बारे में सोचूंगा। इसमें 5 साल भी लगते हैं। ये सारी बातें करने के बाद वो चला गया। उसके जाने के बाद मेरी अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, देख लिया तूने, मैं ना कहती थी कि सुफियान तो उससे शादी नहीं करेगा। वो सीधे से इनकार भी नहीं करा लेकिन अपनी मजबूरियां बताकर तुझसे जान छुड़वा रहा है। तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अपने ताया के बेटे से शादी कर ले जो खुशी खुशी खुद तेरा रिश्ता मांगने आए थे। काफी देर तक मैं बैठी आंसू बहाती रही। पहले सोचा अब सुफियान से नहीं मिलूंगी मगर फिर रहा ना गया और सोचा आज उससे मिलकर जरूर पूछूंगी कि आखिर उसने इतना अरसा मुझे क्यों धोखे में रखा। उस रात जब मैं सुफियान से मिली तो उससे खूब लड़ी। उसने फिर से यही कहा कि वो एक नामालूम मुद्दत तक शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे इंतज़ार कर सकती हो तो कर लो,
अगर मुस्तकबिल में मेरे हालात संवर गए तो किसी दिन तुमसे निकाह भी हो ही जाएगा। ये उसका खड़ा सा जवाब था। उस रोज सुफियान के जवाब से मेरा दिल चूर हो गया। इस कदर तौहीन महसूस की कि जी चाहा जमीन में गड़ जाऊं। मैंने कहा, जब तुम इतना ही मजबूर थे तो तुम मुझे इन मुलाकातों के लिए क्यों मजबूर करते थे? क्यों कुर्बत के मरहले तय किए? तुमने वो आगे से कहने लगा, मैं तो अपने दिल से मजबूर था। मगर तुम क्यों आती थी मेरे बुलाने पर? यह उसका जवाब था। मैंने रोते हुए कहा, मैं भी दिल से मजबूर थी, मगर अब जो दिल पर गुजरी की सह लूंगी, अपने दिल को मार लूंगी, मगर अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ये कहकर मैंने नीचे का रुख किया तो मुड़कर भी उसकी जानिब ना देखा। मैंने सुफियान से अब कभी ना मिलने का तहैया कर लिया था। हफ्ते बाद आया लोग आगे, वो मंगनी का जोड़ा और अंगूठी साथ लेते आए थे। उन्होंने अम्मी से कहा कि सादगी से शादी होगी। निकाह का जोड़ा बनाने का ऑर्डर दे दिया। पहली तारीख निकाह की रख लेते हैं। आप अपने चंद मोहल्लेदारों को बुला लेना, हमारे साथ भी ज़्यादा लोग नहीं होंगे। यूँ मेरी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मेरी माँ मेरी शादी में मशगूल हो गई, मगर मेरा दिल तो वैसे ही मुर्दा हो चुका था। मुकर्ररा तारीख पर मुख्तसर बारात आई और बड़ी सादगी से मेरा निकाह हो गया। रुखसती का खाना भी ताया जान ने ही बनवाया था। कुछ मोहल्लेदार ने इस तकरीब में शिरकत की। रुखसती हो गई और मैं ताया के घर यानी अपने ससुराल आ गई। जब मुझे फूलों की सेज पर बिठाया गया तो मेरा दिल जैसे खौफ के मारे सोच रही थी कि कहीं फारूक को मेरी मासी के बारे में पता ना चल जाए। उस रात जब वो मेरे पास आया तो मैं उस वक्त चौंक गई जब उन्होंने मुझसे कहा, तुमसे एक बात पूछूं, मगर वादा करो कि तुम सच सच बताओगी। उस लम्हे मेरा दिल जैसे मेरे सीने से बाहर लपकने को तैयार था। सोचने लगी, न जाने क्या बात पूछना चाहते हैं, मगर अगले ही लम्हे उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। मैं वैसे ही कह रहा था और यूं उसने बात आई गई कर दी। मैंने भी शुक्र का कलमा पढ़कर जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ ना था। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे और इस शादी से मुतमईन भी दिखाई दे रहे थे। मगर मुझे नहीं मालूम था कि एक ना एक दिन तो ये सच खुलने ही वाला था। दिन गुजरने लगे। कहने को तो मेरा ब्याह हो गया था, मगर मेरा दिल किसी पे बात में ना लगता था। उस बेवफा की याद रह रह के मेरे दिल में चुटकियां लेती थी। कभी कभार जब दिल उसके लिए हद से ज्यादा बेचैन हो जाता तो खुद को कोसती कि क्यों जल्दबाजी में शादी कर ली। अगर वो इंतजार करने को कहता था तो इंतजार कर लेती। मोहब्बत करने वाले इंतजार तो करते ही हैं, चाहे वो थोड़े दिनों का हो या उम्र भर का। मोहब्बत तो नाम ही इंतजार के दुख सहने का है। कुछ दिन सब्र कर लेने से शायद सुफियान मुझे अपना ही लेता। अब तो जो जिंदगी मिली थी उसको जूं तू गुजारना था। सुफियान की यासत आती तो छुप कर रो लेती, अपने दिल का दुख किससे बयान करती। नई नवेली दुल्हन थी, मगर नई दुल्हों जैसी खुशी मेरे चेहरे से नहीं झलकती थी। फारूक अक्सर मुझसे मेरी उदासी का सबब पूछते, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर दिल जोई करते तो मैं रो पड़ती। अपने पास प्यार से बिठाया और बोले, ज़ैनब ये बात मैं शादी की रात भी तुमसे कहना चाहता था। तुम्हें याद है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि एक बात पूछूं, मगर वादा करो कि तुम मुझे सच सच बताओगी, लेकिन बाद में मेरे बात टाल दी थी। उस रात में मैं यही बात तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन फिर मुनासिब ना समझा कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। मगर अब तुम्हें रोजाना ही परेशान देखते हुए मैं आज ये बात कर लेना चाहता हूँ। मैंने तो पहले यही सोचा कि मैं तुमसे इसके मुतालिक कभी ना पूछूंगा, मगर अब मैं रोज महसूस करता हूँ कि तुम अब भी मेरे साथ खुश नहीं हो, इसलिए आज मैं ये बात कर लेना चाहता हूँ। ज़ैनब देखो, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। शायद तुम ये समझती हो कि मुझे कुछ खबर नहीं है। मुझे खबर है कि तुम सुफियान से शादी करना चाहती थी, मगर मैंने फिर भी तुम्हें अपनाया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो तुझसे शादी का इरादा नहीं रखता, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। सच कहूँ तो उस बात की मुझे बहुत तकलीफ, क्योंकि तुम मेरे मरहूम चचा की बेटी हो। अपने घर की इज्जत को दूसरों के हाथों में खिलौना बनता देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। तभी जब अबूजी ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते के लिए रजामंदी पूछी तो मैंने फौरन हाँ कह दी। सुफियान का एक दोस्त मेरे साथ ही मुलाजमत करता था, उसके जरिए मुझे हर बात की खबर हो जाती थी। सुफियान उसको तफसील के साथ तुम्हारी और अपनी छत पर होने वाली मुलाकातों के किस्से सुनाता था और वो आगे मुझे सुना दिया करता था कि लड़के तो ऐसी बातें खुश होकर दूसरों को सुनाते हैं। सोचो अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होता तो ये बात अपने दोस्त से करता। और सच है ना कि तुम रातों को सुफियान से छत पर मुलाकातें करती। उसकी ये बात सुनकर मेरे जैसे कदमों से जमीन निकल गई। ये सच ही तो था, भला इतने खुले सच को मैं क्यों
झुठलाती। मैंने अपने बहते आंसू को रोका नहीं और ना ही उनको साफ किया, ना मैंने फारूक को कोई जवाब दिया। मगर हाँ, मैंने उसके पैरों पर हाथ रख दिया और रो रो कर कहने लगी, फारूक, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वो दिन मेरी ना समझी की भूल थी। तो मुझे अच्छे बुरे की तमीज ना थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। आपने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। जान गई हूँ कि कौन अपना है और कौन पराया। वो बाहौसला शख्स कहने लगा, जो गुजर गया सो गुजर गया। मैंने इस सब को भुला दिया है और तुम भी भुला दो। अहद करो कि फिर कभी कोई ऐसी गलती करने का सोचोगी भी नहीं। मैंने वादा किया कि मैं आइंदा उम्र भर इन्हीं की पाबंद बनकर रहूंगी। शोहर और बीवी के इस मुकद्दस रिश्ते की पासदारी करूंगी। सुफियान से तो मुझे नफरत हो गई थी। इंसान भी अजीब मखलूक है, उसके इरादों के बदलते देर नहीं लगती। वही सुफियान जिसकी बेवफाई मुझे रुला रही थी, अब उसके बारे में सोचने से भी वहशत होती थी, क्योंकि मैं उसकी हकीकत जान चुकी थी। बड़ी बात यह थी कि इतना सब जाने के बावजूद भी फारूक ने मेरे मायके जाने पर पाबंदी नहीं लगाई थी, वरना मुझे तो लगता था कि वो मुझे वहां जाने से मना कर देगा। बड़े सदमे की बात तो ये थी कि जब सुफियान की वालदा को इल्म हुआ कि सुफियान ने मेरी अम्मी से ये कहकर रिश्ते से इनकार किया था कि उसकी वालदा नहीं मान रहे, तो वो माजरत करने मेरी अम्मी के पास आ गई। अम्मी से गले लगकर रोई और कहा कि मैं तो दिल से ज़ैनब को अपनी बहू बनाना चाहती थी, कि यतीम बच्ची है और हमारी आंखों के सामने ही पली बढ़ी है। मगर सुफियान ने मुझे रोका था। उसने कहा कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, क्योंकि वो एक बड़े बाप की बेटी है। उससे शादी करके मेरी तकदीर संवर जाएगी। मेरे सुफियान ने लालच किया, जबकि हम उसको रोक रहे थे, कि ज़ैनब हमारी देखी भाली बच्ची है, शादी बराबरी के लोगों में ठीक रहती है। वो सादा लू खतून जब खुद सुफियान की नीयत से पर्दा उठा गई, तो मेरे अंदर यादों के महल भी जलते हुए मलबे की ढेर बन गई। उस रोज तो अपने लुट जाने के गम में इस कदर रोई कि जी चाहता था सामने जलती हुई आग हो और मैं उसमें कूद कर खुदकुशी कर लूं। मेरी शादी के 9 माह बाद बेवफा सुफियान ने रुबीना से शादी कर ली और फिर दामाद बनकर माँ के घर से रुखसत हो गया। हैरत की बात यह थी कि अपनी शादी के बाद भी उसने कई बार मुझे पैगाम भिजवाया कि छत पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर मैं ना गई। आखिर क्यों जाती? अपने शोहर की अमानत में खयानत की मर्तकब होने उसके नज़दीक तो मैं खिलौना थी, तो क्या अभी मैं खिलौना बन जाती? जानबूझकर खुद को ऐसी जलती राख में उसकी जानें भरती। सुफियान खुद मुख्तियार था, वो अपने वालिद के दबाव में ना था। चाहता तो मुझे अपना सकता था। मेरी माँ ने रजामंदी दे दी थी। उसके घर वालों ने भी उसे इजाजत दे रखी थी, अगर ज़ैनब के साथ शादी कर लो तो हम खुश हैं। हमें बताओ, हम रिश्ता मांगने जाएं। मगर उसने खुद ही मना कर दिया, मुझे धोखा दिया और बाद में उसकी कुली खुल गई। मैं तो पहली वाली गलतियों पर नादिम थी। जब आखिरी बार उसकी बहन सुफियान का पैगाम लेकर आई, तो मैंने हाथ जोड़ दिया कि उसको कहो मेरी जान छोड़ो और तुम दोबारा उसका कोई पैगाम ना लाना। उसके साथ गुजरे हुए दिन मेरी रूह पर अभी तक बदनुमा दागों की मानस सबूत थे। बस ना चलता था कि तेज छुरी से उनको खुरच डालती। भला अब क्या मैं इससे मिलने की हमाकत कर सकती थी? जबकि अपने शोहर की अनायतें देखती तो ज़मीर मलामत करने लगता था। तब मन करता किसी से कुछ ना कहूं, मगर पछतावे के एहसास से बचने को तन्हाई के जलते तंदूर में कूद पड़ूं और धीरे धीरे सुलगने के बजाय एक बार ही जलकर मर जाऊं। यह एहसास कि दुनिया भी अजब दुनिया है। कभी दुनिया के चमन सारों में गुल व बुलबुल की हकीकत महकती और चहकती है, तो कभी पछतावों की आतिश चमनसारों में जंगल की आग की तरह फैलकर सभी कुछ जलाकर राख कर डालती है। जल्दी मुझे मालूम हो गया कि पछतावा सिर्फ मुझको ही नहीं जला रहे हैं, इन लपेटों ने सुफियान को भी घेर लिया। वक्त बड़ा मनसिफ है, उसने इंसाफ किया। रुबीना को दौलत का गरूर था, वो सुफियान की जिंदगी को क्या सुधारती। उसके गरूर ने सुफियान की इज्जत को ही ख़त्म कर दिया। तभी वो एक लूटे हुए जवारी की तरह मासी के रास्तों पर लौटने की आरज़ू में दीवाना फिरने लगा। यानी अपनी बहन के हाथ पैगाम देता, मैं जानती हूँ कि उसने क्या ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे अपने ज़मीर की कलश को मिटाने के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी थी, या फिर दूसरी वो बात जो मैं सोच भी ना सकती, वो ये थी कि मैं अपने मेहरबान साथी को छोड़ूं और वापस लौट आऊं। मगर ये उसका ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वक्त गुजर चुका था। आज मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ, मगर मासी की कलश आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती
اور کبھی کبھی تو میرے شوہر بھی ضرور سوچتے ہی ہوں گے، وہ الگ بات ہے کہ وہ جتلاتے نہیں۔ میں سب بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جوانی کا دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب بہت دلکش لگتا ہے، مگر کبھی ایک غلطی زندگی بھر پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے اچھے نصیب کرے۔ مزید دلچسپ کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔